इकिगाई। और हम स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्टीव जॉब भी गए थे। स्टीव जॉब जापान गए थे उनसे सीखने के लिए, ये देखने के लिए कि किस तरह इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर शुरू करके और किस तरह से काम किया जाता है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे लोगों से काम लेना है ना। और स्टीव जॉब्स कौन थे? एप्पल कंपनी, जो एप्पल फोन्स एंड आईपैड्स और ये होते हैं, एप्पल कंपनी के फाउंडर। So yes, and our very beautiful Aarti Gupta from Delhi will be reading for us. Good morning, ma'am. Good morning. Steve Jobs in Japan. Apple co founder Steve Jobs was a big fan of Japan. Not only did he visit the Sony factories in the 1980s and adopt many of their methods when he founded Apple, he was also captivated by the simplicity and quality of the Japanese porcelain in Kyoto. It was not, however, an artisan from Kyoto who won Steve Jobs' devotion, but rather a Takumi from Toyama named Yukio Shakunaga, who used a technique called Echu Setoyaki, known by only a few. On a visit to Kyoto, Jobs heard of an exhibition of Shakunaga's work. He immediately understood that there was something special about Shakunaga's porcelain. As a matter of fact, he bought several cups, vases, and plates and went back to the show 3 times that week. Jobs returned to Kyoto several times over the course of his life in search of inspiration and ended up meeting Shakunaga in person. It is said that Jobs had many questions for him, almost all of them about the fabrication process and the type of porcelain he used. Shakunaga explained that he used white porcelain he extracted himself from the mountains in the Toyama prefecture, making him the only artist of his ilk familiar with the fabrication process of porcelain objects from their origins in the mountains to their final form, an authentic Takumi. Jobs was so impressed that he considered going to Toyama to see the mountain where Shakunaga got his porcelain, but thought better of it when he heard that it was more than 4 months by train from Kyoto. In an interview after Jobs' death, Shakunaga said he was very proud that his work has been purchased from him had been a set of 12 teacups. दोबारा दोबारा पढ़ो एक बार आरती. In He an added, interview. in an interview after Jobs' death, Shakunaga said he was very proud that his work had been appreciated by the man who created the iPhone. He added that Jobs purchased from him had been a set of 12 teacups. Jobs had asked for something special, a new style. To satisfy this request, Shakunaga made 150 teacups in the process of testing out new ideas. Of these, he chose the 12 best and sent them to the Jobs family. Ever since his first trip to Japan, Jobs was fascinated and inspired by the country's artisans, engineers, especially at Sony, philosophy, especially Zen, and cuisine, especially sushi. Yeah, so this is about Steve Jobs. हम सबको पता है, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे. He had died because of pancreatic cancer a few years ago. लेकिन हम सबको पता है, हम एप्पल के प्रोडक्ट्स आज भी यूज करते हैं और बहुत प्राइड के साथ करते हैं, है ना. अगर एप्पल का लैपटॉप ले रहे हो या एप्पल का फोन ले रहे हो या आईपैड ले रहे हो तो बड़ा मजा आता है. उनकी टेक्नोलॉजी अलग है, क्योंकि देखो स्टीव जॉब्स कितने ज्यादा परफेक्शनिस्ट और इतना, मतलब कंपनी खोलने के पहले वो सारे उन कंपनीज में गए उनके बारे में जानने के लिए कि क्या उनमें स्पेशल है कि जो वो अपनी कंपनी में यूज कर सकते हैं, है ना. तो और फिर वो जापान आए क्योंकि उनको इनसे सीखना था. उनको ये पता था कि यहाँ के लोग अपने काम को लेके बड़े डिलिजेंट होते हैं.
तो फिर वो जापान आए और वहां पे स्पेशली ये जो हम सबको पता है जापानीज कप्स होते हैं ना छोटे छोटे, जिसमें ये लोग ग्रीन टी पीते हैं, बहुत छोटे से कप्स होते हैं, उसमें वो ड्रैगन, वो पोर्सलेन जिसमें बड़ी सुंदर सुंदर सी डिजाइन बनी होती हैं, राइट, वी ऑल नो अबाउट इट, मतलब बहुत ही ये कॉमन। तो वो उस आर्टिजन से मिलने के लिए आते थे कि व्हाट इज इट जो वो करता है, वो किस तरह से अपना काम करता है, कितना ज्यादा परफेक्शनिस्ट है, कितना इन्वॉल्व है अपने काम में, कितना स्ट्रांग उसका फ्लो है, इस तरह उनको ये सीखना था उससे। जबकि देखो बिल्कुल ऑपोजिट कंपनी है, कहाँ उनकी टेक्नोलॉजी की कंपनी, कहाँ इसकी टी कप बनाने की कंपनी, दोनों में कोई मैच ही नहीं था, है ना। लेकिन वो ये सीखने आते थे कि किस तरह से अपने काम को आप परफेक्ट कर सकते हो और किस तरह अपना फ्लो डिराइव कर सकते हो काम करके, कि हाउ टू बी बेटर एंड बेटर एट योर वर्क। तो वो उससे मिलने के लिए आए, वो टी कप बना के उसमें वो कार्विंग वार्विंग करता था, डिजाइन बनाता था। तो उससे उन्होंने पूछा कि तुम इसको इतना सुंदर कैसे बनाते हो, तो कहता है कि अरे मैं अपना पोर्सलेन किसी माउंटेन की किसी जगह से लेके आता हूँ और फिर उसके बाद मैं उस पर आर्टिस्ट्री करता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी उस माउंटेन के पास जाके देखना है कि तुम कहाँ से ये लेके आते हो, पर वो क्योटो से 4 घंटा दूर था। तो इस तरह से यू सी दैट स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी है, आज हम बड़े मजे से उनके प्रोडक्ट्स वेट कर रहे होते हैं कब आईफोन 17 लॉन्च होगा, हर सितंबर में एक नया आईफोन लॉन्च होता है और वो होता है। देखो ये सारा ब्रेन चाइल्ड है उस आदमी का, स्टीव जॉब्स, जो पूरी दुनिया, वो सिर्फ जापान नहीं आए थे, जापान वो सीखने आए थे कि ये लोग अपने काम में किस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं, छोटी छोटी बारीकी से चीजों का ध्यान रखते हैं। मतलब स्टीव जॉब्स को एक 12 कप का सेट चाहिए था, तो उसमें उसने 150 वो बनाए कि मैं स्टीव जॉब्स के लाइक उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाऊं। ये जो आर्टिजन थे, ये जो पर्सन जो टी कप बनाते थे और उस पर डिजाइन करते थे, इन्होंने 150 कप बनाए क्योंकि स्टीव जॉब्स ने उनको बताया था कि मुझे इस तरह का काम चाहिए होता है ना। और हम लोग सब निपटाते हैं आजकल काम, हमारे कहाँ पता नहीं इतनी इमैक्युलेटली कि बैठ के डिलिजेंटली काम करना, ये करना, उसमें फ्लो आना है, वो होता ही नहीं है। काम हमारे लिए स्ट्रेस का सोर्स हो चुका है, इसीलिए तो हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है ना। जिस दिन काम आपका पूजा बन जाएगा, आपको लगेगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क, वो एक्साइटमेंट, वो जॉय आएगा, उस दिन सब आ जाएगा। उस दिन आपका काम आपको दुनिया घुमाएगा, उस दिन आपके काम आपको अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। और ये सब मैग्नेटाइज होता है हमारी जिंदगी में, जिस दिन हमने अपने काम को बहुत अच्छा 200% देना शुरू कर दिया, हमारा काम चल के आएगा, अपॉर्चुनिटीज चल के आएंगी, ऐसे ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, आपको बहुत मजे मिलेंगे, आप सारा वो काम कर पाओगे जो आपको बहुत पसंद है ना। तो ये स्टीव जॉब्स इस तरह का इमर्जन इन वर्क ये देखने के लिए जापान आए थे, और उनको वो इंसान भी दिखा, और फिर उनको ये पता लगा कि देखो इस बंदे से मुझे कुछ सीखना जरूर है, देयर इज समथिंग अबाउट दीज पीपल जो और कहीं नहीं है दुनिया में। तो वो बहुत जगह उन्होंने बहुत रेकी की, स्टीव जॉब्स वाज अमेजिंग, आउट ऑफ द बॉक्स उनकी थिंकिंग थी, डेफिनेटली वो अब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी तो हमारे नीम करौली बाबा जी के आश्रम में ही वो पॉलिश होके गए, वहीं से सज के संवर के मंच के वहां से गए, है ना। जब उनको एप्पल भी खोलना था उनको पता नहीं था, बट उनको ये पता था कि मुझे दुनिया में कोई बहुत बड़ा काम करना है। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि उनके पास पैसे तो थे नहीं, क्योंकि वो एक कंप्यूटर की दुकान में काम करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की तरफ उनका बहुत रुझान था। तो फिर उसके बाद व्हेन ही डिडंट अंडरस्टैंड एंड बट उनमें वो स्पिरिचुअलिटी थी। देखो कोई ऐसे काम कर रहा है ना अगर, तो इसका मतलब है कि उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो उनकी स्पिरिचुअलिटी का एंगल बहुत स्ट्रांग था, तो वो अपने सारा काम, जब उनको लग रहा था कि नहीं मुझे दुनिया में कुछ तो करना है और बड़ा करना है, तो वो अपने सारा काम धाम अमेरिका से छोड़ के आए, ही केम टू इंडिया, हिमालय पे गए और कैंची धाम गए जहाँ पे नीम करौली बाबा जी का आश्रम है, वहां पे रहे 6 महीना। और वहां पे जाके उन्होंने उनसे उनसे स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, भक्ति के बारे में सीखा। उन्होंने अपने आप से कनेक्ट करने को, इन्होंने किस तरह डिवाइन पावर से आप कनेक्ट हो सकते हो वो सीखा। 6 महीने यहाँ पे रहे जैसे बेंटिनो मसारो जी की तरह, है ना। ये सारे महान लोग इसीलिए हैं क्योंकि इन सबको बनाया इंडिया नहीं है। जब वो यहाँ पे आए, जब यहाँ पे 6 महीने रहे, उसके बाद गए और उनकी जो भी बात हुई नीम करौली बाबा जी से, तो वहां पे जाके फिर उन्होंने एप्पल कंपनी को वो किया। उनका लोगो है ना वो कटा हुआ एप्पल, एक एक खा वो जो बाइट लिया हुआ एप्पल, उसका भी इंस्पिरेशन उनको कैंची धाम से मिला था। सो इजंट इट ब्यूटिफुल दैट ऑल दीज, ये बड़े बड़े जो लोग हैं इनका दुनिया में कई नाम है, सब कैंची धाम के बने हुए लोग हैं, सब हिंदुस्तान आए, सब यहाँ पे हिमालय पे रहे,
है ना? और स्टीव जॉब्स नॉट जस्ट हियर, जापान भी गए वो देखने के लिए कि क्या इनमें ये बात है कि ये लोग, मतलब एवरीबडी नोज दैट वर्क वाइज जापानीज से तो ऊपर कोई होता ही नहीं है। तो ये सीखने गए कि किस तरह काम किया जाता है, किस तरह लगन, काम में पैशन, काम में एक्साइटमेंट, काम में जॉय कैसे लेके आ सकते हैं, क्यों ये लोग अच्छा करते हैं। दैट इज व्हाट ही डिड एंड ही वाज वेरी वेरी फैसिनेटेड बाय लॉट ऑफ कंट्रीज आर्टिजन्स, नॉट जस्ट दैट, राइट। और वो बार बार जापान आए, मतलब एक बार नहीं, सीखने के लिए। नॉट जस्ट दैट, उनको जो सोनी कंपनी है वहाँ के इंजीनियर से मिले, उन्होंने उनको काम करते हुए देखा, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ रुझान था। बिकॉज वो, उन्होंने फिर एप्पल कंपनी में वही ना, मतलब उनको वो पहले भी ऐसे जहाँ पे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बनते थे, वो उनके दुकान में काम करते थे, मतलब ही वॉज एन एम्प्लॉय अर्लियर। तो उनको वो था टेक्नोलॉजी से, तो जो सोनी कंपनी का हेड ऑफिस वही है ना, इट इज़ इन जापान। तो वहाँ के लोगों से मिले, इंजीनियर्स से मिले, उनकी क्रिएटिव टीम से मिले। फिर उन्होंने जैन फिलॉसफी के बारे में मालूम किया, कुजीन देखा जापान का कैसा होता है, क्या होता है। सुशी, सुशी का बहुत पसंद था, सुशी, ये सब किया उन्होंने। सो दैट इज व्हाट लाइक ही डिड ऑल दैट रेकी बिफोर ही स्टार्टेड। और अपनी कंपनी को ग्रो कराने के लिए वो उनसे मिलते थे कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ जिससे एप्पल कंपनी अनदर लेवल पे पहुंची। सब सीख सीख के इन लोगों से। तो वो भी जापानीज की स्पिरिचुअलिटी हिंदुस्तान से आई, और उनको अपना परफेक्शन काम में जापान से मिला। हाँ जी आरती। Sophisticated simplicity. What do Japanese artisans, engineers, Zen philosophy, and cuisine have in common? Simplicity and attention to detail. It is not a lazy simplicity, but a sophisticated one that searches out new frontiers, always taking the object, the body, and mind, or the cuisine to the next level according to one's ikigai. As Csikszentmihalyi would say, the key is always having a meaningful challenge to overcome in order to maintain flow. The documentary Zero Dreams of Sushi gives us another example of Takumi, this time in the kitchen. Its protagonist has been making sushi every day for more than 80 years and owns a small sushi restaurant near the Ginza subway station in Tokyo. He and his son go every day to the famous Zuki, Su, Sukizi fish market and choose the best fish to bring back to the restaurant. In the documentary, we see one of the Jiro's apprentices, apprentices learning to make tamago, a thin, slightly sweet omelette. No matter how hard he tries, he can't get Jiro's approval. He keeps practicing for years until he finally does. Why does the apprentice refuse to give up? Doesn't he get bored looking eggs every day? No, because making sushi is his ikigai too. Both Jiro and his son are culinary artists. They don't get bored when they cook. They achieve a state of flow. They enjoy themselves completely when they are in the kitchen. That is their happiness, their ikigai. They've learned to take pleasure in their work, to lose their sense of time. Beyond the close relationship between father and son, which helps them keep the challenge going each day, they also work in a quiet, peaceful environment that allows them to concentrate. Even after receiving a 3-star rating from the Michelin, they never considered opening their other locations or expanding the business. They serve just 10 patrons at a time at the bar of their small restaurant. Jiro's family isn't looking to make money. Instead, they value good working conditions and creating an environment in which
they can flow while making the best sushi in the world. Jiro, like Yukio Shakunaga, begins his work at the source. He goes to the fish market to find the best tuna. Shakunaga goes to the mountains to find the best porcelain. When they get down to work, both become one with the object they are creating. This unity with the object that they reach in a state of flow takes on a special meaning in Japan, where, according to Shintoism, forests, trees, and objects have a kami, spirit or god, within them. When someone, whether an artist, an engineer, or a chef, sets out to create something, his or her responsibility is to use nature to give it life while respecting that nature at every moment. During this process, the artisan becomes one with the object and flows with it. An iron worker would say that metal has a life of its own, just as someone making ceramics would say that that the clay does. The Japanese are skilled at bringing nature and technology together, not man versus nature, but rather a union of the two. Yeah. So thank you, Aarti, for reading so beautifully and such an important content. Thank you. तुम्हारा भी इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी का वो रीडिंग का एग्जाम था, Yes, ma'am. है Thank you ना? so much. Japanese is indeed quite a cryptic language, very difficult. Yes, ma'am. So, but then we are learning. Thank you so much for reading so beautifully. ओके नाउ स्टीव जॉब्स आके अलग अलग किस्म के लोगों से क्यों मिले? एक जगह वो मिले जो पोर्सलेन का काम करता था और जो चाय के कप बनाता था, ग्रीन टी जिसमें पीते हैं। एक जगह वो मिले तो वो वहां पे सोनी के इंजीनियर्स से मिले। कहीं और गए तो वो सुशी बनाने वाले कुक से मिले। वो अलग अलग लोगों से मिल रहे थे। हैव यू नोटिस्ड? इट वाज नॉट, जबकि उनको वो एप्पल की कंपनी के ओनर थे, तो उनको टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं, वो उनका काम में जो जुनून होता है ना, उससे सीखना चाहते थे। वो सिर्फ सीखने गए थे एक लर्नर के एटीट्यूड से। इमेजिन, इतने बड़े कंपनी के लोग उनका इंटरव्यू लेना चाह रहे होंगे कि स्टीव जॉब हमारी कंपनी में आ गए, बहुत बड़ी बात है, राइट? तो ये जो पोर्सलेन जो बनाता था, ये भी सोच रहा था कि यू नो व्हाट, लाइक स्टीव जॉब्स ने मेरे मेरे 12 कप मुझसे ऑर्डर किए, ओ माय गॉड, बहुत बड़ी चीज थी उसके लिए। बस स्टीव जॉब एक लर्नर की तरह गए थे, है ना? वो उनसे सीखने गए, तो कहते हैं मैं सीखने आया हूँ आपसे। मैं एस आई एम नॉट लाइक आई एम नोबडी राइट नाउ, आई हैव जस्ट कम हियर टू लर्न, बिकॉज आप लोगों में इतना कुछ है जो मुझे सीखने की जरूरत है। पहला तो ये लर्नर का एटीट्यूड, जिसके कारण एप्पल कंपनी को हम आज उनके प्रोडक्ट्स यूज करके सो हैप्पी। बट इमेजिन उन्होंने क्या क्या करके बिल्ड की है। कहते हैं ना, वही जब स्वॉन पानी के ऊपर चल रही होती है, सो इट लुक्स लाइक शी इज फ्लोटिंग, राइट? बट उसके पैर बहुत जोर जोर से नीचे चल रहे होते हैं। जो बिहाइंड द सीन मेहनत और एफर्ट होती है ना, वो किसी को दिखता नहीं है, सब ऊपर की चमक को देखते हैं, राइट? सो ये कर रहे थे स्टीव जॉब्स। वो जापान जाके अलग अलग लोगों से मिल रहे थे जिनके अलग अलग तरह के काम है, और जो अपने काम में बेस्ट थे, जो उनको लगता था वाह, मतलब माइंड ब्लोइंग सुशी, उनकी जैसे सुशी मिशलिन स्टार मिला हुआ, उनसे जाके मिले। और वो बंदा जो पहले मतलब 80 सालों से सुशी बना रहे हैं, वो आज भी बना रहा है। ये नहीं कि चलो अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मेरा बिजनेस का काम वो संभालेंगे। नो, ही वॉज जस्ट डूइंग इट हिमसेल्फ, है ना? वो खुद सोचे। वो रोज सुबह जल्दी उठ के ट्यूना फिश खरीदने के लिए जाते थे, क्योंकि फिश की सुशी बनती है ना? तो वो ट्यूना खरीदने के लिए जाते थे और स्क्रीन करते थे कि कौन सी ट्यूना मेरी बेस्ट है ना, जो मैं लेके आऊं, जिससे मैं सुशी बनाऊं। तो वो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। ये नहीं कि वो किसी को, अपने बच्चों को भेज देते थे, वो उनको कर देते थे। ये ही वुड हिमसेल्फ गो, कि वहां पे देखना, लेके आना। और वहीं पे मतलब जो मेट्रो स्टेशन जो भी है उसके पास उनकी छोटी सी रेस्टोरेंट बार है,
उसमें बनाते थे। कोई बिजनेस एक्सपेंशन नहीं किया उन्होंने। अभी भी एक बार में 10 ही प्लेट बनाते थे तो 10 ही वो सर्व करते थे, जैसे एक एक लॉट में इतना बनता है ना उस तरह से, क्योंकि सुशी को स्टीम करना पड़ता है। तो एक लॉट में 10 प्लेट सुशी बनती थी उनकी। तो उन्होंने कोई ये नहीं सोचा कि मैं एक और स्टीमर लगा दूं कि मेरा मतलब प्रोडक्शन डबल हो जाए या ऐसे। नो, ही वॉज वेरी वेरी फोकस्ड ऑन दैट क्वालिटी। ही सेड कि नहीं, अगर मैंने क्वांटिटी की तरफ फोकस कर लिया तो शायद क्वालिटी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो उनका स्टेट ऑफ फ्लो था। वो बिल्कुल टाइम ही भूल जाते थे अब सुशी बनाते बनाते। सेम थिंग उन्होंने सोनी के इंजीनियर्स और इसमें ये बताया कि उन सब में कॉमन क्या था। उनमें कॉमन यही था कि उनकी सिंप्लिसिटी एंड अटेंशन इन डिटेल। बहुत ज्यादा देखते थे कि दिस इज हाउ इट इज डन, ये गलत है, इसको हम ठीक कर सकते हैं, ये ऐसा है। दे वर सो अमेजिंग विद देयर वर्क। तो ये चीज सीखने वाली थी, है ना। सो यही है दैट इसमें जैसे ये लिखा हुआ है दैट हैव गुड मीनिंगफुल चैलेंजेस टू ओवरकम। मीनिंगफुल चैलेंज का मतलब क्या होता है? द की इज टू ऑलवेज हैविंग अ गुड मीनिंगफुल चैलेंज। इसका मतलब अपना कंपटीशन अपने से। मीनिंगफुल चैलेंज ये नहीं बोलता है कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया कि मैं केपेबल नहीं हूं, अभी मैं दिखाती हूँ उसको, बस मुझे ना 2 महीने का टाइम चाहिए, आई विल शो। दैट्स नॉट अ गुड चैलेंज टू हैव। जस्ट बिकॉज किसी के इमोशन के विक्टिम आप बन गए हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है और आपके उसके इमोशन के आप विक्टिम बन गए हो, इट्स नॉट अ गुड चैलेंज टू हैव इन योर लाइफ, right? Challenge is that I really want to excel in my work. I really want to shine. I want to help people or whatever it is. I want to produce the best fabric. मुझे लोगों को ड्रेसअप करने में बहुत पसंद है, मुझे लोगों का मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे लोगों को जॉय देना पसंद है ना। तो जब इस तरह का हमारा एटीट्यूड होता है, दैट इज कॉल्ड अ हेल्दी मीनिंगफुल चैलेंज। जो जापानीज का होता है, मतलब अपना कंपटीशन अपने से होता है। द लीस्ट बॉदर अबाउट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, व्हाट अदर्स आर सेइंग। लोग वो पुल डाउन कर रहे हैं, पुल अप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे वो इनकी सुशी के यूकी की सुशी के बारे में, जूरी की सुशी के बारे में भी गलत बोलते होंगे कि अरे ऐसे ही है, हाइप है, पुराने हैं इसलिए। बट इनको कोई फर्क पड़ा? वो फिर सुबह उठ के अपना बैग लेके अपना बेस्ट ट्यूना खरीदने के लिए निकल जाते हैं। फिर से उनके दुकान के आगे लाइनें लग जाती हैं, है ना। सो दिस इज हाउ इट इज डन। जब हम हांगकांग में थे, सो वी वर स्टेइंग एट द हॉलीवुड स्ट्रीट। तो हम एक बार ऐसे ही आ रहे थे, मैं और पूनम साथ में गए थे हांगकांग। तो जब हम वापस आ रहे थे तो हमने सुबह देखा, मैंने पूनम को बोला कि यहाँ पे पता नहीं क्या है, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। और वो लाइन की वो दुकान ही खुली हुई नहीं थी अभी तक। और वो लाइन लगी हुई कम से कम नहीं तो 400 मीटर की लाइन थी। अभी दुकान नहीं खुली हुई थी उसकी, और वो बिल्कुल हमारे हॉलीवुड स्ट्रीट में, मतलब होटल के बिल्कुल साथ में ही परपेंडिकुलर थी। वी आर वंडरिंग कि यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसी क्या खास चीज मिलती है, और हम लोग तो टूरिस्ट ही हैं, है ना। तो हमें लग रहा था कि वी शुड ऑल्सो एक्सप्लोर कि यहाँ पे क्या मिल रहा है। वो कुकी बनाते थे। फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि फिर हाँ वी लुक्ड अप, हाँ वी लुक्ड अप, हमने फटाफट गूगल खोला और हमने देखा कि ये क्या है। फिर हमने देखा वो कोई कुकी की दुकान थी। तो कुकी की दुकान देखा हमने गूगल करके, तो उसमें लिखा हुआ था इट कम्स इन द 10 टॉप मोस्ट कुकी शॉप्स इन द वर्ल्ड और वट एवर, है ना। और फिर पता लगा इट वॉज जस्ट रिसेंटली स्टैब्लिश्ड, इट वॉज नॉट इवन दैट इट्स वेरी ओल्ड। अब वो इतनी कुकीज की दुकानें होती है, और कुकी खाने कौन दुकान का शटर खोलने के पहले मतलब आधे किलोमीटर लाइन लगा के खड़ा रहता है। और फिर नेक्स्ट डे हमने देखा हुआ ऐसा ही था। फिर से वही 300-400 मीटर की लाइन लगी हुई थी। और क्योंकि वी वर अर्ली राइजर्स, तो हमारा वो होता था कि हम अपना टूरिस्टी थिंग्स करने के पहले हम पहले इधर उधर नाइस हेल्दी ब्रेकफास्ट खाने के लिए जाते। तो फिर से वो लाइन देखी। तो फिर उसमें पता लगा कि अच्छा ये जो कुकी ओनर है ना, ये बहुत डिलिजेंटली, एंड देन अगेन दैट पर्सन सर्व्स हिमसेल्फ एंड ही बेक्स हिमसेल्फ। तो इस तरह सक्सेस स्टोरीज कैसे बनती है, ये स्टीव जॉब सीखने गए थे। और उन्होंने वहां से ये देखा कि वो बंदा, मतलब कोई वो नहीं, पैसे का लालच नहीं कि बहुत। और फिर वो जो जीरो जो था उनका एक अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी था। तो एक ट्रेनी आया जो सीखने के लिए आया, ऑब्वियसली काम में उनको हेल्प की जरूरत होगी। तो वो ट्रेनी को वो कहते थे जब तक ये परफेक्ट होके बिल्कुल इस लेवल का नहीं आ जाता जिसमें ये A++ बन जाए, तब तक आई विल ट्रेन हिम। और वो फिर सीखता था, अपनी तरफ से वो बेस्ट करता था, लेकिन जीरो उसको बोलते थे अभी भी ठीक नहीं है ये अभी भी ठीक नहीं। उनका सेटिस्फैक्शन का लेवल ही इतना हाई था। तो इस तरह से, लेकिन वो जो ट्रेनी था वो बिल्कुल बोर्ड नहीं होता था।
उसको लगता था वाह, मतलब मुझे भी ऐसे परफेक्ट सीखने को मिलेगा, वो ही डिड नॉट गिव अप। व्हाई? बिकॉज उसका इकिगाई था सुशी बनाना इनके अंडर। इन जो जूरी थे इनके अंडर उसको था, जीरो जीरो सॉरी, तो जीरो के अंडर उनको सीखने का था और उनको भी उन लेवल का पहुंचना था। तो वो भी इकिगाई, तो उसको एक भी बार नहीं लगा कि इसके लिए तो 50 बार काम कर लो तब भी ये खुश नहीं होता, है ना, बिल्कुल भी ऐसा। तो वो ही बता रहे थे कि जीरो, उनका बेटा, ये सब, तो इनका सारा ये जितने भी लोग थे जो थे, है ना, इन सब का यही है कि इनका इकिगाई, इनका फ्लो, इनका काम, इनकी इंजॉयमेंट, अपने काम में बेस्ट देना, यही सब चीजें थी, और बहुत प्यार देना अपने काम को। तभी तो मिशेलिन स्टार मिला इनको, जबकि इतनी छोटी सी बार है। सबने, कितने बड़े बड़े लोगों ने ऑफर्स दिए होंगे उनको कि अपने नाम से आउटलेट बना लो, जैसे अगर कोई एक अग्रवाल स्वीट्स होता है या कुछ होता है, तो बहुत फ्रेंचाइजीज मिलते हैं कि वहां पे भी खोल लो, यहाँ पे भी खोल लो, इस नाम से वहां पे भी मिल जाएगा। जैसे येलो चिलीज है शेफ संजीव कपूर का, तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे ये वाले रेस्टोरेंट्स, राइट। अगर एक बस नाम चाहिए होता है कि ओके, इफ दिस लाइक कोई स्टार है, कोई मूवी स्टार है, उसने कोई रेस्टोरेंट खोला है, तो उसके नाम से कि यहाँ पे भी खोल लो, यहाँ पे भी खोल लो, यहाँ पे भी खोल लो, तो उस पर्सन की उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रह जाती, बस उसके नाम से खुल रहा है, वो चल रहा है, लोग आ रहे हैं, अच्छा ये उनका है ना, इस तरह से। बट जेन्युइनली बहुत फर्क पड़ता है। जैसे दिल्ली में देर इज अ प्लेस कॉल्ड बोबाची, साउथ एक्स में। सो इट्स अ ब्यूटीफुल बार, कैफे, रेस्टो, एवरीथिंग इन टू वन। तो वो शेफ युवराज कोहली का है, तो उनके 3 जनरेशन से वो चल रहा है। और बोबाची का खाना इवन राइट नाउ इज अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब आप कहीं पे भी पिज्जा भी खा लो ना, वहां का पिज्जा विल बी डिफरेंट, वहां पे आप डिमसम्स ऑर्डर करोगे, उसका स्वाद अलग होगा। दे हैव मेंटेन दैट। तो जितनी बार भी वी गो देयर, वी ऑलवेज फील दैट यहाँ के खाने में बात है कुछ। वाई? और उनकी प्रेजेंस दिखती है उस खाने में जो आप ऑर्डर कर रहे हो, दैट वे। सो ये इकिगाई होता है, दैट जस्ट गोइंग टू द, गो डाउन टू द डिटेल, दैट ओ दिस इज नॉट, ये है, इस तरह से करो, वो करो। सो ये बहुत, आई थिंक ये सक्सेस का, आई रिमेम्बर दैट बहुत सारे वीएलसीसी, तो वहां पे जितनी भी क्लासेस होती हैं, तो उनका सो था दैट आई हैड टू शूट देम, और हमने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था, ब्लेंडेड लर्निंग के नाम से एप्लीकेशन है, जो सिर्फ वीएलसीसी के लोगों को एक्सेस है उसका। तो उसमें सारे मेरे क्लासेस थे, तो वी वो शूटिंग, और मल्टीपल डेज उनकी शूटिंग चली, क्योंकि हमारे तो सब्जेक्ट्स ही इतने सारे। सो आई हैड टू मेक सम 140 वीडियोज, और कभी कभी एक दिन में शूट पूरी भी नहीं होती थी, राइट। सो 140 वीडियोज उस बनाने के दौरान, तो पूरे टाइम वो शूट किया। तो ऐसे होता था ना, मैंने अपना काम कर दिया, नाउ आई एम गोइंग, नो, आई वुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, आई शुड नॉट लुक स्लॉपी, मेरी आवाज कहीं कम कहीं ज्यादा तो नहीं हुई है। फिर मैं पीछे उसके बैठ के बिहाइंड वो कैमरा के जो फोटोग्राफर होते थे, इट वॉज अ ह्यूज टीम ऑफ पीपल, अबाउट 7-8 पीपल, है ना, एक वॉइस का होता था, एक कुछ होता था, एक हेडफोन लगा के बैठा होता था, एक प्रोड्यूसर है, एक डायरेक्टर है, बहुत बड़ी टीम थी, बिकॉज आउटसोर्स किया हुआ था वीएलसीसी ने। सो एक्चुअली सिट विद देम बिहाइंड द सीन, और वो छोटे कैमरा के स्क्रीन पे बैठ के मैं देखती थी कि ये गलत है, आई वांट टू रीशूट इट। तो वो भी बोलते थे कि आपकी जैसे इन्वॉल्वमेंट हमने देखी नहीं है काम में, मतलब ऐसे आप शूट करके चले जाते, बट यू सिटिंग विद अस एंड यू सेइंग कि इसमें आवाज ठीक नहीं आई है, इसमें मैं थोड़ी सी लेफ्ट में बैठी हूँ, इसमें ऐसा है, वो है। तो मुझे बड़ा मजा आता था ये करने में, एंड दैट बिकेम सच अ हिट। वो अभी भी वो वीडियोस भाई, अभी भी वो वही उन्हीं को देख के क्लासेस में पढ़ते हैं, मतलब जो लोग ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं उनके पास वो एक्सेस है। सो बड़ा मजा आता है ऐसे करने में, है ना, एंड देन यू ग्रो एंड एक्सपैंड ऑल्सो सो मच एंड ओनली गेट बेटर। सो दिस इज अबाउट द स्किल ऑफ द जापानीज पीपल एंड हैट्स ऑफ टू देम। और प्लस इनमें इनको ये बहुत है कि हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में गॉड होता है, स्पिरिट होते हैं, जान होती है, ये तो हमको पता ही है ना। तभी तो हम बोलते हैं कि अपनी कार को भी बोलो दैट थैंक यू एंड आई रियली लव यू, थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ इजी। अगर आपकी वाटर बॉटल है, आप उसको भी थैंक यू बोलो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, एनर्जी रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो जापानीज को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसमें भी स्पिरिट है, उसमें भी गॉड है, उसमें भी डिविनिटी है कहीं पे। तो वो बोल रहे थे कि वो उसी तरीके से काम करते हैं। तो इसीलिए दे ब्रिंग नेचर एंड टेक्नोलॉजी, नेचर की, नेचर में जो भी चीजें हैं, जैसे एक आयरन वर्कर है, या कोई सुशी के लिए वो सीवीड का रोल करते हैं वो लोग सुशी बनाने के लिए। तो सीवीड में भी कहते हैं इसमें भी जान है। अगर आयरन का काम कर रहे होते हैं उसमें जान है, पोर्सलेन का काम कर रहे होते हैं, उनको पता है कि इसमें लाइफ है,
है ना? सो वो उस लाइफ को ऑनर करते हैं। तो ये उनकी एनर्जी होती है। ये नहीं कि सोच के अरे ये तो आयरन की नेल है, इसमें क्या है। उनको ये पता है ये आयरन की नेल में ना लाइफ है, इसमें डिवाइन है, इसमें गॉड है। कितनी अच्छी चीज है ना ये वाली, इनसे सीखने वाली हर चीज। अगर मेरे सामने कप रखा हुआ है तो इसमें भी जान है। अगर वाटर बॉटल है उसमें भी जान है इसमें। इट हैज लाइफ, इट हैज स्पिरिट, इट हैज गॉडली पावर्स इन इट। तो इस एसेंस के साथ अपने आप रेवरेंस आ जाता है। जैसे भगवान के मंदिर में हम कभी गंदे जूते और गंदे हाथों से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये मंदिर है। हमारा उस तरह का उस लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है ना? तो वो काम जब करते हैं तो उनको ये पता है कि इसमें डिविनिटी है, ये तो भगवान है। ये आयरन का स्लैब है, ये भगवान है ना? ये बना रहे हैं तो ये भगवान है। अगर वो सुशी का रोल और ट्यूना ले रहे हैं तो अरे ये तो भगवान है। वो पोर्सलेन बना रहे हैं तो उसको लग रहा है इसमें डिविनिटी है, इसमें गॉड की पावर है। तो अपने आप जैसे मंदिर में हमारा भाव आ जाता है एक श्रद्धा का, है ना, और बहुत हाईएस्ट रिस्पेक्ट का। अपने आप हाथ ऐसे जुड़ जाते हैं मंदिर में जाते ही, है ना? अपने आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं तो भगवान का नाम जपना शुरू हो जाता है हमारा, ऑटोमेटेड, है ना? अपने आप हम दोनों हाथों से नीचे सीढ़ियों के बाद छू के अपने सिर पे लगाते हैं। अपने आप भगवान की मूर्ति के पास जाते हैं। अगर बेल होती है तो हम मंदिर की घंटी भी बजाते हैं। और हम सिर भी ढक लेते हैं कई बार, है ना? ये हमारे संस्कार है, क्योंकि भगवान के लिए श्रद्धा हमारे दिल में बहुत ज्यादा है। तो इमेजिन कि उनका ये भाव है कि हिंदुइज्म में उसमें है ही कि हर चीज में जान है, हर चीज में भगवान है। तो अगर वो पोर्सलेन भी माउंटेन से लेने जा रहे हैं, पहले तो उस माउंटेन के लिए उनका वो वाला भाव होता है कि मतलब वो गॉड ही है। और फिर उसमें से जो वो पोर्सलेन निकाल के लेके आते हैं, वो उसके लिए उनका भाव होता है कि इसमें तो ये तो भगवान का रूप है पोर्सलेन। अपने आप उनके काम में शफा आ जाती है ना? तो ये चीज जापानीज से सीखना, दैट एवरीथिंग इज लाइफ। और हमको पता है साइंटिफिकली एवरीथिंग इज लाइफ। आप अभी कप का, बॉटल का, अगर अगर बैग है, अगर मेरा फोन है, इसका भी अगर हम इसको चार्ज, मतलब इसका वो एनर्जी को मेजर करें, इनकी रहा होगा। अगर मैंने ये फोन उठाया, मैंने अपने फोन को बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, थैंक यू, कि ये तो बिल्कुल, इट इज, देयर इज अ गॉड इन माय फोन एंड आई लव सो इजी। मेरा काम मेरे फोन की वजह से है, वाईफाई एक्सेस मैं कर सकती हूँ फोन की वजह से। अगर मैंने इतना प्यार देना शुरू किया अपने फोन को, अपने आप मेरा फोन साथ देने लग जाएगा। और मेरा फोन के साथ रिश्ता, फोन का मेरे साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा, बिकॉज देयर इज डिविनिटी इन दिस। दैट इज व्हाट जापानीज पीपल बिलीव। या सो दैट इज व्हाट वी हैव इन आवर स्टडी टुडे।